Let's see some conversation example. Conversation 1. Planning a trip. A. Did you visit Paris last year? क्या तुम पिछले वर्ष पेरिस गए थे? B. Yes, I visited Paris with my family. हाँ, मैंने अपने परिवार के साथ पेरिस की यात्रा की थी. A. That sounds amazing. Did you enjoy the Eiffel Tower? ये सुनकर अच्छा लगा. क्या तुमने एफिल टावर का आनंद लिया? B. Yes, I enjoyed it, but my brother did not like it. हाँ, मैंने इसका आनंद लिया, लेकिन मेरे भाई को ये पसंद नहीं आया. Conversation 2. Discussing a movie. A. Did you watch the new movie last weekend? क्या तुमने पिछले सप्ताहांत नई फिल्म देखी? B. Yes, I watched it. It was really good. हाँ, मैंने इसे देखा. ये सच में अच्छी थी. A. I heard the ending was not satisfying. मैंने सुना कि अंत संतोषजनक नहीं था. B. Yes, many people did not like the ending. हाँ, बहुत से लोगों को अंत पसंद नहीं आया. Conversation 3. Talking about school. A. Did you complete your project on time? क्या तुमने अपना प्रोजेक्ट समय पर पूरा किया? B. Yes, I completed it last week. हाँ, मैंने इसे पिछले सप्ताह पूरा किया. A. What about your friend? Did he finish his project? तुम्हारे दोस्त का क्या उसने अपना प्रोजेक्ट पूरा किया? B. No, he did not finish it on time. नहीं, उसने इसे समय पर पूरा नहीं किया. Conversation 4. Discussing a party. A. Did you attend the party on Friday? क्या तुमने शुक्रवार को पार्टी में भाग लिया? B. Yes, I attended the party, and it was fun. हाँ, मैंने पार्टी में भाग लिया, और यह मजेदार था. A. Did your sister come with you? क्या तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ आई थी? B. No, she did not come because she was busy. नहीं, वह नहीं आई क्योंकि वह व्यस्त थी. Conversation 5. Sharing holiday plans. A. Did you go to the beach last summer? क्या तुम पिछले गर्मियों में समुद्र तट पर गए थे? B. Yes, I went to the beach with my friends. हाँ, मैं अपने दोस्तों के साथ समुद्र तट पर गया था. A. It sounds like you had a great time. ये सुनकर ऐसा लगता है कि तुम्हारा बहुत अच्छा समय बीता. B. Yes, but some of my friends did not enjoy the water sports. हाँ, लेकिन मेरे कुछ दोस्तों को जल क्रीड़ाएं पसंद नहीं आईं. Conversation 6. Discussing a class project. A. Did you present your project yesterday? क्या तुमने कल अपना प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया? B. Yes, I presented it in front of the class. हाँ, मैंने इसे कक्षा के सामने प्रस्तुत किया. A. How did your classmate react? तुम्हारे सहपाठियों की प्रतिक्रिया कैसी थी? B. Most of them liked it, but a few did not understand it. उनमें से अधिकांश को ये पसंद आया, लेकिन कुछ को समझ नहीं आया. Conversation 7. Talking about a family gathering. A. Did your family gather for Diwali last year? क्या तुम्हारा परिवार पिछले साल दिवाली पर इकट्ठा हुआ था? B. Yes, we gathered at my grandparents' house. हाँ, हम अपने दादा दादी के घर इकट्ठा हुए थे. A. Did everyone enjoy the sweets? क्या सभी ने मिठाइयों का आनंद लिया? B. Yes, but my uncle did not like the laddus. हाँ, लेकिन मेरे चाचा को लड्डू पसंद नहीं आए. Conversation 8. Discussing a concert. A. Did you go to the concert last month? क्या तुम पिछले महीने कॉन्सर्ट में गए थे? B. Yes, I went with my friends, and it was fantastic. हाँ, मैं अपने दोस्तों के साथ गया था, और यह शानदार था. A. Did you see your favorite band perform? क्या तुमने अपनी पसंदीदा बैंड का प्रदर्शन देखा? B. Yes, but my friend did not enjoy their music. हाँ, लेकिन मेरे दोस्त को उनका संगीत पसंद नहीं आया. Conversation 9. Talking about a vacation. A. Did you travel to any new places this year? क्या तुमने इस साल किसी नए स्थान की यात्रा की? B. Yes, I traveled to Japan last summer. हाँ, मैंने पिछले गर्मियों में जापान की यात्रा की. A. Did you try sushi there? क्या तुमने वहाँ सुशी का आनंद लिया? B. Yes, I tried it, but my sister did not like it. हाँ, मैंने इसे चखा, लेकिन मेरी बहन को ये पसंद नहीं आया. Conversation 10. Discussing a cooking class. A. Did you take the cooking class last week?
क्या तुमने पिछले सप्ताह खाना बनाने की कक्षा ली? बी, यस, आई टुक इट एंड लर्नड मेनी न्यू रेसिपीज। हाँ, मैंने इसे लिया और कई नए व्यंजन सीखे। ए, डिड योर फ्रेंड जॉइन यू फॉर द क्लास? क्या तुम्हारा दोस्त कक्षा में तुम्हारे साथ आया था? बी, नो, ही डिड नॉट जॉइन बिकॉज ही वॉज बिजी। नहीं, वह नहीं आया क्योंकि वह व्यस्त था। कॉन्वर्सेशन 11, टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट्स। ए, डिड यू प्ले फुटबॉल येस्टरडे? क्या तुमने कल फुटबॉल खेला? बी, यस, आई प्लेड विद माई टीम एंड वी वॉन। हाँ, मैंने अपनी टीम के साथ खेला और हम जीत गए। ए, डिड योर ओपोनेंट गिव यू अ टफ कॉम्पिटिशन? क्या तुम्हारे प्रतिद्वंद्वी ने तुम्हें कड़ी प्रतिस्पर्धा दी? बी, यस, बट दे डिड नॉट स्कोर एनी गोल्स। हाँ, लेकिन उन्होंने कोई गोल नहीं किया। कॉन्वर्सेशन 12, डिस्कसिंग अ बुक। ए, डिड यू रीड दैट न्यू बुक एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट? क्या तुमने वह नई किताब पढ़ी जो सभी बात कर रहे हैं? बी, यस, आई रेड इट लास्ट वीकेंड। हाँ, मैंने इसे पिछले सप्ताहांत पढ़ा। ए, डिड यू लाइक द एंडिंग? क्या तुम्हें अंत पसंद आया? बी, यस, बट माई फ्रेंड डिड नॉट लाइक इट एट ऑल। हाँ, लेकिन मेरे दोस्त को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। आर्टिकल, द बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज। इंग्लिश वर्जन। एक्सरसाइज इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ। व्यायाम अच्छे स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इट हेल्प्स इम्प्रूव कार्डियोवास्कुलर फिटनेस एंड स्ट्रेंथन्स मसल्स। ये हृदय वाहिकाओं की फिटनेस में सुधार करता है और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। लास्ट ईयर, आई जॉइन्ड अ जिम टू फोकस ऑन माई फिटनेस। पिछले वर्ष, मैंने अपनी फिटनेस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक जिम ज्वाइन किया। आई वर्कड आउट रेगुलरली एंड फॉलोड अ हेल्दी डाइट। मैंने नियमित रूप से व्यायाम किया और एक स्वस्थ आहार का पालन किया। एज अ रिजल्ट, आई लॉस्ट वेट एंड फेल्ट मोर एनर्जेटिक। इसके परिणामस्वरूप, मैंने वजन कम किया और अधिक ऊर्जा महसूस की। Many of my friends noticed my transformation. मेरे कई दोस्तों ने मेरी परिवर्तन को देखा। They also encouraged me to share my workout routine. उन्होंने मुझे अपनी कसरत की दिनचर्या साझा करने के लिए भी प्रेरित किया। I organized a fitness workshop last month. मैंने पिछले महीने एक फिटनेस कार्यशाला आयोजित की। During the workshop, I shared my experiences and tips. कार्यशाला के दौरान, मैंने अपने अनुभव और सुझाव साझा किए। Participants appreciated my efforts and showed interest in exercise. प्रतिभागियों ने मेरी कोशिशों की सराहना की और व्यायाम में रुचि दिखाई। Exercise not only improves physical health but also boosts mental well-being. व्यायाम केवल शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार नहीं करता, बल्कि मानसिक भलाई को भी बढ़ावा देता है। I encourage everyone to incorporate physical activity into their daily routines. मैंने सभी को अपने दैनिक कार्यक्रमों में शारीरिक गतिविधि को शामिल करने के लिए प्रेरित किया। Article, a memorable vacation English version. Last summer, I visited the beautiful beaches of Goa. पिछली गर्मियों में, मैं गोवा के खूबसूरत समुद्र तटों पर गया। I traveled with my family and we had a wonderful time. मैं अपने परिवार के साथ यात्रा किया और हमने अद्भुत समय बिताया। Every morning, we enjoyed watching the sunrise on the beach. हर सुबह, हमने समुद्र तट पर सूर्योदय देखने का आनंद लिया। We explored various water sports like parasailing and jet skiing. हमने पैरासेलिंग और जेट स्कीइंग जैसे विभिन्न जल खेलों का पता लगाया। One day, we visited a famous seafood restaurant and tasted delicious dishes. एक दिन, हम एक प्रसिद्ध समुद्री भोजन रेस्तरां में गए और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लिया। The locals were friendly and shared their culture with us. स्थानीय लोग मित्रवत थे और उन्होंने हमारे साथ अपनी संस्कृति साझा की। I took many pictures to capture the beautiful moments. मैंने खूबसूरत लम्हों को कैद करने के लिए कई तस्वीरें लीं। On our last night, we watched a traditional dance performance. हमारी आखिरी रात को, हमने एक पारंपरिक नृत्य प्रदर्शन देखा। Everyone clapped and enjoyed the show. सभी ने ताली बजाई और शो का आनंद लिया। I returned home with wonderful memories and stories to share. मैं अद्भुत यादों और साझा करने के लिए कहानियों के साथ घर लौटा। This vacation reminded me of the importance of spending time with loved ones. ये छुट्टी ने मुझे प्रियजनों के साथ समय बिताने के महत्व की याद दिलाई।
Article: The Importance of Education. Education is one of the most vital aspects of life. शिक्षा जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है. Last year, I graduated from university with a degree in science. पिछले साल, मैंने विज्ञान में डिग्री के साथ विश्वविद्यालय से स्नातक किया. I learned many concepts that shaped my understanding of the world. मैंने कई सिद्धांत सीखे जो मेरी दुनिया की समझ को आकार देते हैं. After graduation, I searched for job opportunities in my field. स्नातक होने के बाद, मैंने अपने क्षेत्र में नौकरी के अवसरों की तलाश की. I applied to several companies and attended interviews. मैंने कई कंपनियों में आवेदन किया और साक्षात्कार में भाग लिया. Fortunately, I received a job offer from a renowned company. किस्मत से, मुझे एक प्रसिद्ध कंपनी से नौकरी का प्रस्ताव मिला. My parents celebrated my achievement and supported my career journey. मेरे माता पिता ने मेरी उपलब्धि का जश्न मनाया और मेरे करियर की यात्रा में मेरा समर्थन किया. I realized that education opens doors to various opportunities. मैंने समझा कि शिक्षा विभिन्न अवसरों के दरवाजे खोलती है. I encouraged my younger siblings to focus on their studies. मैंने अपने छोटे भाई बहनों को उनकी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया. Education not only helps in securing a good job but also fosters personal growth. शिक्षा न केवल एक अच्छी नौकरी सुरक्षित करने में मदद करती है, बल्कि व्यक्तिगत विकास को भी बढ़ावा देती है. I believe that lifelong learning is essential for success in any field. मेरा मानना है कि किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए जीवन भर सीखना आवश्यक है. Article: A Day in the Life of a Teacher. Last Monday, I started my day early as a teacher. पिछले सोमवार, मैंने एक शिक्षक के रूप में अपना दिन जल्दी शुरू किया. I prepared my lessons and organized the classroom. मैंने अपनी पाठ योजनाएं तैयार की और कक्षा को व्यवस्थित किया. When the bell rang, the students entered the classroom excitedly. जब घंटी बजी, तो छात्र उत्सुकता से कक्षा में प्रवेश किया. I greeted them and began the lesson on history. मैंने उनका स्वागत किया और इतिहास पर पाठ शुरू किया. During the class, I encouraged students to participate actively. कक्षा के दौरान, मैंने छात्रों को सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया. After the lesson, I assigned homework and answered their questions. पाठ के बाद, मैंने गृहकार्य सौंपा और उनके सवालों का उत्तर दिया. At lunchtime, I joined my colleagues in the staff room. दोपहर के भोजन के समय, मैं अपने सहयोगियों के साथ स्टाफ रूम में शामिल हुआ. We discussed various teaching methods and shared our experiences. हमने विभिन्न शिक्षण विधियों पर चर्चा की और अपने अनुभव साझा किए. In the afternoon, I conducted a fun science experiment with the students. दोपहर में, मैंने छात्रों के साथ एक मजेदार विज्ञान प्रयोग किया. I noticed that they enjoyed learning through practical activities. मैंने देखा कि वे व्यावहारिक गतिविधियों के माध्यम से सीखने में आनंद लेते हैं. At the end of the day, I felt satisfied with my work and the progress of my students. दिन के अंत में, मुझे अपने काम और छात्रों की प्रगति से संतोष मिला. Article: The Joy of Gardening. Gardening is a rewarding hobby that brings joy to many. बागवानी एक सुखद शौक है जो कई लोगों को आनंद देती है. Last spring, I started my own garden in the backyard. पिछले वसंत में, मैंने अपने पिछवाड़े में अपना बाग शुरू किया. I planted various flowers and vegetables that I liked. मैंने कई प्रकार के फूल और सब्जियां बोई जो मुझे पसंद थीं. Every morning, I watered the plants and checked their growth. हर सुबह, मैंने पौधों को पानी दिया और उनकी वृद्धि की जांच की. I learned about different gardening techniques from books and online resources. मैंने किताबों और ऑनलाइन संसाधनों से विभिन्न बागवानी तकनीकों के बारे में सीखा. One day, I noticed a butterfly visiting my flowers. एक दिन, मैंने देखा कि एक तितली मेरे फूलों पर आ रही थी. It was a beautiful sight that made my hard work worthwhile. यह एक सुंदर दृश्य था जिसने मेरी मेहनत को सार्थक बना दिया. As summer approached, I harvested fresh vegetables from my garden. जैसे जैसे गर्मी आई, मैंने अपने बाग से ताज़ी सब्जियां काटी. I shared the vegetables with my family and friends. मैंने सब्जियां अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा की.
Gardening not only provides food but also enhances mental well-being. बागवानी न केवल भोजन प्रदान करती है बल्कि मानसिक भलाई को भी बढ़ाती है. I encouraged my friends to start their own gardens. मैंने अपने दोस्तों को उनके अपने बाग शुरू करने के लिए प्रेरित किया. Article: Traveling the world. Traveling is one of the most enriching experiences in life. यात्रा करना जीवन में सबसे समृद्ध अनुभवों में से एक है. Last year, I visited several countries and explored different cultures. पिछले साल, मैंने कई देशों की यात्रा की और विभिन्न संस्कृतियों का पता लगाया. I started my journey in Italy, where I admired the architecture. मैंने अपनी यात्रा इटली में शुरू की, जहां मैंने वास्तुकला की प्रशंसा की. I tasted delicious pasta and gelato in local restaurants. मैंने स्थानीय रेस्तरां में स्वादिष्ट पास्ता और जेलाटो का स्वाद लिया. After Italy, I traveled to France and visited the Eiffel Tower. इटली के बाद, मैं फ्रांस गया और एफिल टावर का दौरा किया. I took many photos to capture the beauty of the landmark. मैंने इस प्रसिद्ध स्थान की सुंदरता को कैद करने के लिए कई तस्वीरें लीं. Next, I explored Japan, where I experienced traditional tea ceremonies. इसके बाद, मैंने जापान का दौरा किया, जहां मैंने पारंपरिक चाय समारोह का अनुभव किया. I learned about their rich history and unique customs. मैंने उनकी समृद्ध इतिहास और अद्वितीय रीति रिवाजों के बारे में सीखा. Throughout my travels, I met many friendly locals who shared their stories. अपनी यात्रा के दौरान, मैंने कई मित्रवत स्थानीय लोगों से मिला, जिन्होंने अपनी कहानियां साझा की. I returned home with unforgettable memories and a broader perspective on life. मैं अद्वितीय यादों और जीवन के प्रति एक विस्तृत दृष्टिकोण के साथ घर लौटा. Traveling taught me the importance of embracing diversity and understanding different viewpoints. यात्रा करने ने मुझे विविधता को अपनाने और विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने के महत्व की शिक्षा दी. In the future, I plan to continue exploring new places and cultures. भविष्य में, मैं नए स्थानों और संस्कृतियों का पता लगाने की योजना बना रहा हूँ.